So, miscellaneous exercise, chapter 8, it's binomial theorem. So, what is question number first? Question number first is find. मुझे क्वेश्चन से करना है Question number first. Question is find A, B, and N in the expression of A plus B power. मतलब ये तीनों चीजें निकालनी है, A निकालना है, B निकालना है और N निकालना है, ठीक है? लेकिन गिवन क्या है? If the first three terms of the expansion are Given that first three terms first three terms are, जरा बताओ क्या क्या है? 7 to 9 7 to 9 7 to 90 3037 5 देखो कोई बाइनोमियल है, वही बाइनोमियल हमें निकालना है, कौन सा बाइनोमियल है जिसको एक्सपेंड करने के बाद पहली तीन टर्म्स ये है, ठीक है? उस बाइनोमियल को हमने ढूंढना है, मतलब हमें A निकालना है, B निकालना है और N निकालना है. इज दैट क्लियर? अच्छा, गिवन दैट फर्स्ट थ्री टर्म्स आर, सबसे पहले जनरल टर्म in the expansion of A plus B power N is, what is general term? It is TR plus 1 is NCR A power N minus R B power R. यही तो बाइनोमियल भी है और यही इसकी जनरल टर्म है, यहां पे कोई और चीज नहीं है, ये A B और N यही है, ठीक है? और हमने इस A B और N को निकालना है. Now first term is given. How much is first term? लेकिन फर्स्ट टर्म को लिखते कैसे? किसी भी टर्म को, जनरल टर्म को हम कैसे लिखते हैं? उसमें से हम 1 अलग से निकालते हैं, मतलब 0 प्लस, which is NCR means NC 0, A power N minus 0, B power 0, ठीक है? Which is equal to 7 to 9. So which gives us NC 0 is 1, B power 0 is 1, so which gives us A power N is equal to 7 to 9. Take this as first. You got it? समझ आवा? फिर है second. Again it is second. Second term is 7290. But second term in the general term form it can be written as 1 plus 1. मतलब R का वैल्यू क्या आया? R का वैल्यू 1 आया. So it is NC1 यहां पे A power N minus 1 and B power 1 is equal to 7290. Therefore, you know when it's 1 here, NC1 is N, and it's A power N minus 1 and B, which is 7290. ठीक है? फिर कौन सी टर्म है? And third term is T2 plus 1. Now what's the value of R? Listen to me. The value of R is 2. So it is NC2 A power N minus 2 B power 2 is equal to 30375. अच्छा, NC2 किसके बराबर है? N factorial divided by 2 factorial into N minus 2 factorial. समझ आ रहा है? थोड़ा और इसको सिंपलीफाई करते हैं. N factorial can be written as N into N minus 1 into N minus 2 factorial divided by 2 factorial means 2 and this. नहीं समझे? Yes sir. Which is equal to 30375, है ना? So total कुल मिला के हमारे पास है N into N minus 1 divided by 2 is equal to 30375. इसके साथ ये भी है ना? So it is
NC2 is n factorial, 2 factorial, n minus 2 factorial, a power n minus 2, b power 2 is equal to 30375. अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। ये हम करेंगे सिंप्लीफाई। सो n फैक्टोरियल को कहां तक लेकर जाएंगे? n minus 2 तक। सो विच implies n into n minus 1, n फैक्टोरियल लेकर जाएंगे, n into n minus 1 into n minus 2 फैक्टोरियल divided by 2 and n minus 2 factorial is equal to, sorry, a power n minus 2, b power 2, which is equal to 30375. So which gives us n into n minus 1 divided by 2, a power n minus 2, b power 2 is equal to 30375. इतना ठीक है? अच्छा, ये 2 हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसको मल्टीपल करो 30375 मल्टीप्लाइड बाय 2, 30375 हाँ 30375 60750। तो हमने क्या किया, 2 को इधर मल्टीपल किया, 2 यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज 750। This is 3. Now we have first, we have second and we have third equation. अब देखो A, B और C, A, B और N के वैल्यूज निकालने के लिए हम इन्हीं इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। व्हाट इज सेकंड? It's n a power n minus 1 and b, n a power n minus 1 and b divided by a power n is equal to 7290, ये divided by 729। अब इसमें से देखो क्या आएगा, n साथ में क्या है, b। अच्छा, when bases are same, powers are subtracted in case of division, है ना। न्यूमरेटर में भी ए है, डिनोमिनेटर में ए है। अब आपकी मर्जी है, आप इनको यहां पे सब्ट्रैक्ट करो या डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करो। बड़ा तो यहीं पे है तो नीचे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? नहीं समझेंगे। एक और तरीका समझाने का, अगर ये a पावर 4 है मान लो, तो ये कितना है फिर? a पावर 4 minus 1, ये तो 3 है ना, 4 minus 1। अगर ये a पावर 10 है तो ये कितना है? a पावर 9, a पावर 9, क्योंकि ये इससे एक कम है। जब कैंसलेशन करोगे बचेगा इधर एक, वो भी एक समझने का तरीका है, समझ आओ। फिलहाल करो इसको हेल्प करने आप। व्हेन बेस n b, व्हेन बेसेस आर सेम, पावर शुड बी सब्ट्रैक्ट, मतलब n minus 1, ये minus n इसको सब्ट्रैक्ट करें। और ये तो सेम नंबर्स है, 0 एक्स्ट्रा है, मतलब क्या बचेगा 729 into 10 is 7290। यू गॉट इट? अब इसमें से n कैंसिल, बचा क्या? a पावर -1, तो a पावर -1 नीचे लेकर आओ, टेक दिस एज 4। विंचनेस ने n का वैल्यू दे रहा, ना हमें a का वैल्यू मिला ना b का वैल्यू मिला, ठीक है। अभी और मेहनत करनी है। अब क्या करेंगे इस बार, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड राइट नाउ, इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड। थर्ड इज n into n minus 1, a power n minus 2, b power 2 divided by n a power n minus 1 and b, क्या बोला अब बोलो, आओ बराबर। थर्ड को आशीष ने वहां में डिवाइड कर 6075 is 0 डिवाइडेड बाय 7290, ये फ्रैक्शंस में आएगा, तो बेहतर है आप ऐसे कैंसिल मत करो। 8.3 फ्रैक्शंस में तो n कैंसिल, क्या बचा अभी जरा बताओ? अभी बचा n minus 1,
n minus 1 when bases are same तो n ऐसे इन दो में से बड़ा कौन है छोटा कौन है n minus 2 छोटा है n minus 1 वाला बड़ा है फर्क कितने है एक की तो बचेगा क्या a बचेगा लेकिन कहां पे डिनोमिनेटर के अंदर नहीं समझे अगर ऐसे नहीं समझे तो ऐसे करते हैं when bases are same power should be subtracted a power n minus 2 में से n minus 1 निकालो ठीक है अच्छा b स्क्वायर बाय b कितना हुआ b अभी ये देखो इसको आप ऐसे कैंसिल करोगे तो फ्रैक्शंस में आएगा ठीक है तो हम इसको कैंसिलेशन ऐसे करेंगे 6050 डिवाइडेड बाय 7290 ये और ये कैंसिल ठीक है अभी 729 बचा तो 3 से कैंसिलेशन होगी 7 5 बात जगह आता है आपको पता है 3 से किसको डिवाइड होता है जब सारे नंबर्स का डिजिट्स का सम ऐसा आता है जो मल्टीपल ऑफ 3 होता है देखो 7 और 5 कितने हुए 12 और 6 कितने हुए 18 तो 18 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब इसको 3 से कैंसिलेशन होगा 3 2s are 6 साथ में 0 3 2s are 6 3 5s are 15 3 2s are 6 3 4s are 12 3 3s are फिर से 3 से 3 ये 20 है 3 6 are 89 दो बचे 3 7s are 21 एक बचा 3 5s are 15 और यहाँ पे 3 8s are and 3 1s are फिर से 3 3 2s are 6 3 2s are 6 एक बचा तो 3 5s are 15 3 9s are 81 फिर से 3 से 3 7s are 21 81 के थे 3 9 27 are 3 7s are 21 एक बचा 3 5s are 15 ये हो गया अभी क्या है अभी फिर से 3 2s are 6 एक बचा 3 5s are 15 3 9s are 27 या क्या 25 by 9 so which is equal to 25 by 9 okay अब इसको और सिंपलीफाई करेंगे so it is n minus 1 a पावर देखो n और n कैंसिल -2 और +1 ये तो नीचे आ जाएगा ना a और यहाँ पे b बचा which is equal to 25 by 9 थोड़ा समझ आया अभी देखो क्या करेंगे अभी इसमें से ये जो हमारे पास है ये इसको कंटिन्यू करेंगे अब कैसे लिखेंगे n minus 1 b डिवाइडेड बाई ये कंटिन्यू है मैंने फिर से एक बार इसको लिखा इट्स 25 by 9 अच्छा n b by a minus b by a is equal 25 by 9 ये n b by a किसके बराबर है 10 तो यहां पे मैं 10 लिखता हूं मैं लिखूंगा ऐसे फ्रॉम इक्वेशन 4 दिस n b by a is 10 minus b by a is equal 25 by 9 so 10 minus 25 by 9 is equal to b by a 9 tens are 90 minus 25 कितना हुआ 65 है ना 65 divided by 9 is equal to b by a तो b by a का वैल्यू कितना आया ना b का वैल्यू मिला ना a का वैल्यू मिला ना n का वैल्यू मिला तो यहां से हमें क्या मिला b by a अभी इसको यूज करेंगे फोर्थ में यूज इन फोर्थ n b by a we get n b by a हमारे पास फिलहाल 10 है तो n b by a कितना है 65 by 9 is equal to 10 so we get n here 65 मतलब it's 90 divided by 65 ठीक है it's 5 13s are and 5 18s are 18 by 13
मगर वो ऐसे कहते हैं Because yours after 6 near the answer. अच्छा वो Yours कहते will fit as well. This is 25 by 9. After 75 by someone school cancellation. One yours could be better. They double. After 75 on. After 75 by 9, 25. Yes. My case are clear after 6. देखो यहाँ पे हमने गलती की थी. Listen to me. Collaboration is 75 by 9 here. After 6 near the answer the answer. पत्नी सा. After ठीक है. देखो यहाँ से हमें मिस्टेक हुई. ये जो है ये basically how much is this? 75. It is 75 by 9. So it is 75 by 9. फिर जाके ये 75 by 9. ये भी 75 by 9. यहाँ पे 75 by 9. यहाँ पे 75 by 9. तो यहाँ पे 15 by 9. 9 tens are 90 minus 75 is 15 by 9. So B की जगह B by A की जगह 15 by 9. 5 by 3. So it is चलो अब यहाँ से ही करते हैं. 90 by हाँ यहाँ से ही करते हैं. N is 5 by 3 is equal 10. ठीक है. So N is equal 30 by 5. N is equal 6. अब किसका वैल्यू हमें सबसे पहले मिला? N का वैल्यू कितना आया? 6. ठीक है. यूज करेंगे इसको फर्स्ट में. यूज इन फर्स्ट. फर्स्ट ये है. इसमें से किसका वैल्यू पता है? N का वैल्यू. सो वी गेट यूज इन फर्स्ट करने के बाद A N की जगह 6 है तो इट इज A पावर 6 इज इक्वल टू 729. A power 6 is equal 729 is the cube of 9 and it's the sixth root of 6. Sorry 3. तो 729 के फैक्टर्स करो तो 3 पावर 6 आएगा. 3 पावर 6 is equal 729. ठीक है. 6 और 6 मतलब जब पावर्स इक्वल होंगे तो बेस भी इक्वल ही होंगे. सो A is equal to 3. और किसका वैल्यू मिला हमें? A का. अभी इन दो वैल्यूज को हम कहां पे यूज करेंगे? फोर्थ में. यूज A and N इन फोर्थ. अब N की जगह कितना है? 6 है. B हमें निकालना है और A की जगह कितना है? 3 is equal to 10. So 3 ones are 3 twos are. So B is equal to 10 divided by 2. That is 5. Therefore, the value of A is 3, the value of N is 6, and the value of B is. Is that clear? बड़ा क्वेश्चन है? मुश्किल है? The expansion of 3x plus 3x power 9 are equal. Yes. Question number 3. Find A. A निकालना है. ठीक है? If Coefficients of x square and x cube are equal to x coefficients of x square and x cube are equal. x cube are equal. The expansion. क्वेश्चन पार्ट किया मतलब ये आंसर में आपको जरूरी नहीं लिखना है. Yes, sir. ये मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ. Find the coefficient of x square and x cube are equal in expansion of what? 3 plus ax 3 plus ax power 9. पावर 9. सो हमारे पास बेसिकली क्या है? ये बाइनोमियल है और हमने a का वैल्यू निकालना है. ये a है कितना यहाँ पे? अगर x स्क्वायर और x क्यूब के कोएफिशिएंट्स इक्वल है. ठीक है. सबसे पहले जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन of a plus b power n is general term in the expansion of a plus b power n is r plus 1 mcr a power n minus r and b power r. अब इसको कंपेयर करो. n कितना है? a कितना है? 3. b कितना है? ax. n is equal 9, a is equal 3, b is equal to ax. Therefore, general term is r plus 1 is equal n is 9cr. है ना? a पावर मतलब 3 पावर
9 minus r. And b power r means ax power r. ये ले लो आप फर्स्ट. हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा जरा बताओ. r का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा? 2. वो तो 2 होना चाहिए, है ना? Yes, sir. r का वैल्यू 2 दे दो तभी तो एक्स स्क्वायर मिलेगा ना. फिर r का वैल्यू 3 दे दो तभी तो एक्स क्यूब मिलेगा. सबसे पहले पुट r is equal to 2 in first. We get t2 plus 1 is equal 9c2. 3 power 9 minus 2 is 7. ax power 2. इसको करेंगे सिंप्लीफाई. So t3 is equal, ये 2 plus 1 3 हुआ. It's 9c2. इवैल्यूएट करेंगे 9c2. It is 9 factorial, 2 factorial, 9 minus 2 is 7 factorial. It's 9 into 8 into 7. 7 तो कैंसिल हो जाएगा. So it's only 9 into 8 divided by 2. It's 36. So it's 36. Okay? Yes. फिर 3 power 7 कितना है जरा बताओ. 7 to 9 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई. 2187. ना 3 power 7. So yes, 2187. 2187. Yes. 2187. It is a square and x square. ठीक है. अब ये x square का कोएफिशिएंट कितना है? 36 into 200. Therefore, कोएफिशिएंट ऑफ x square is, हाँ इसको बोलो सर. 78732. इनको मल्टीप्लाई भी करना है. 732. 732 AX. एंड साथ में a स्क्वायर. देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है. हाँ इसको मैं मल्टीप्लाई करना भूल ही गया था. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचा? 78732 a स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं. अब पुट करेंगे. अब हमें चाहिए x क्यूब. फर्स्ट देखो x के ऊपर r है तो r का वैल्यू 3 होना चाहिए. सो पुट r इज इक्वल टू 3 एंड फर्स्ट we get t3 plus 1 is equal to 9c3. 3 power 9 minus 3, that is 6. You know, 3 power 9 minus 3 is 6. It's ax power 3. So which gives us t of 4 is equal to 9c3 is how much? It's 9 factorial. 3 factorial. 9 minus 3 is 6 factorial. So it's 9 into 8 into 7. 6 क्यों नहीं लिखा? कैंसिल हो जाएगा. डिवाइड बाय 3 and 2 हो गया 6. It is 3. ऐसे लिखेंगे 3 into 2. 3 into 2. 3 ones are 3 threes are 2 ones are 2 fours are 3 into 4 and 7 is 84. 84. 3 fours are 12, 12 sevens are 84. 3 power 6 अभी देखा आपने. 729 है. और साथ में बचा a क्यूब एंड x क्यूब. अब जरा इनको मल्टीप्लाई करो. 61236. 61236 a क्यूब x क्यूब. तो x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? 61236 A cube. Therefore, coefficient of x cube is 61236 a cube. Now it's given that, listen, it is given that, given क्या है? The coefficient of x square and x cube are equal. Coefficient of x square is equal to coefficient of x cube. तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 78732 a स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना है? 61236 a क्यूब. अभी एक काम करते हैं, a स्क्वायर को इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं. 78732 डिवाइडेड बाय 61236 इज इक्वल टू a क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. अभी इनको डिवाइड करो. फ्रैक्शन कैसे दिया? 78732 divided by 61236. This is fraction here 1.28. फिर तो वैसे करना पड़ेगा, कैंसिलेशन करना है. अब एक बार इसको चेक करो, ये बराबर एक और बराबर चेक. वही सच ना कर साथ.
कर into 7. फिर कैंसिल 7873 2 डिवाइड बाय 6 जरा इसका आंसर चेक करो कितना 97 हाँ 97 9 by 7 जरा इसको 7 से डिवाइड कर एक बार 6 1 2 3 6 divided by 7 8 8748 8748 जरा उसी 8748 से इसको डिवाइड कर 8748 8748 9 तो इनको कैंसिलेशन करने के बाद ठीक है अब 1 by 1 2 से कैंसिलेशन करोगे तो कुल मिला के आपको आंसर मिलेगा 9 by 7। अभी आप इसको इजी कैलकुलेशन कैसे बना सकते हो देखो आप क्या करोगे t2 plus 1 इसको आप ऐसे रखो 3 power 7 को मत करो मल्टीप्लाई इसमें और यहाँ पे क्या है 3 power 6 जब आप इन दो को डिवाइड करोगे ना यही दो चीजें कैंसिल हो जाएंगी आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? सो इज इक्वल टू a ओनली क्योंकि यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है सो द वैल्यू ऑफ a इज 9 by 7 into 1 minus x power 7 divided find coefficient of x power 5 coefficient of x power 5 in the product of 1 plus 2x power 1 plus 6 2x power 2x power 6 into into 1 minus x power 7 x power 7 yes, sir. देखो इसको हम एक्सपेंड करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे इन दो को करेंगे मल्टीपल ठीक है उसमें से फिर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 ढूंढना है ठीक शुक्र। अगर ये सिर्फ इतना ही होता एक ही तो हम जनरल टर्म का इस्तेमाल करते लेकिन ये एक नहीं ये दो है तो इसके लिए हमें क्या करना है इसको भी एक्सपेंड करना है इसको भी एक्सपेंड करना है तो हम ऐसा करेंगे नाउ 1 plus x power 6 into 1 minus x power 6 is equal to सबसे पहले ये a plus b power n it is nc0 a क्या इसमें 1 तो a लिखना जरूरी नहीं है हम सिर्फ b लिखेंगे nc0 a and b मैंने a नहीं लिखा क्योंकि सारे 1 जो है उसके ऊपर कोई भी पावर हो 1 बन जाएगा फिर उसके बाद 6c1 2x 6c2 2x 6c3 2x 6c4 2x 6c5 2x 6c6 2x ये समझ आया? yes sir अब इसके ऊपर पावर देखो a तो मैंने इरेज किया यहां से b का पावर कहां से शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड करेंगे सेकंड इसके साथ प्रोडक्ट a माइनस बी पावर 6 एक प्लस एक माइनस सेम 7c0 a को मैं नहीं लिखूंगा b को लिखेंगे x पावर फिर माइनस दूसरा आएगा 7c1 देखो आप ऐसा नहीं लिखना a b की जगह माइनस x लिखोगे नहीं वो मैंने ऑलरेडी कंसीडर किया है तभी मैं लिखता हूं प्लस माइनस 7c1 फिर b प्लस 7c2b 7c3b 7c4b 7c5b 7c6b 7c7 and b 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म तो पावर इसका 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 अभी देखो क्या क्या आएगा ये 1 है yes sir पहले इनको इवैल्यूएट करके रखते हैं पहले कौन कौन बराबर है 6c में 6c0 और 6 दोनों किसके बराबर 1 के बराबर 6c1 और ये 6c6 6c0 और 6c6 दोनों 1 6c1 और 6c5 दोनों 6 के बराबर 6c2 और 6c4 6c3 अब 64 किसके बराबर है 6c2 या 64 ये दोनों बराबर है इट इज 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 15 या yes sir कंफर्म फिर ये ना गलत किसी क्या करो चेक ठीक है 6c3 6 फैक्टोरियल
3 factorial, 6 minus 3, 3 factorial, it is 6, 5, 4 into 3 factorial, cancel, divide by 3 2s are 6, 6 और 6 cancel, तो 20 आएगा, ठीक है? Yes, sir. इसके बाद 7 वाले चेक करते हैं, 7C7 में यहां पे नोट करूंगा, 7C0 और 7C7 दोनों 1, 7C1 और 7C6 दोनों 7 के बराबर। अभी कौन कौन बचा? 7C2 And 75. एंड 7C5 बिकॉज 5 और 2 7 हो गए। अभी चेक करते हैं कितना आएगा। 7C2 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 minus 2 is 5 factorial 7 it can be written as 7 into 6 into 5 factorial वो cancel it is only 7 into 6 divided by 2 that is 7 3s are 21 so it's 21। फिर उसके बाद 7C3 और 7C4 7C3 एंड 7C4 दोनों बराबर है। ये लेते हैं इट इज 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 minus 3 is 4 फैक्टोरियल इट इज 7 6 5 4 तो कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. देन इट इज 3 2 1 दैट इज 6 ये और ये कैंसिल इट इज 7 5 are 35। मुझे मैं गलती No, sir. अच्छा बोलो ये 1 Yes, sir. ये भी 1 कुल मिला के 61 वहां पे लिखा है 6 और ये 2x एक साथ लिखो Yes, sir. चलो 2x ना मेरे पास x का क्या है 62 किसके बराबर है 15 into 4x स्क्वायर। फिर 63 किसके बराबर है 20 into 2 cube is 8x cube। 64 is 15 2 4 is 16 x power 4। 65 is 6 2x 2 power 5 is 32 x power 5। 66 is 1 2x power 6 2 पे 6 तो 64 x power 6। मल्टीप्लाई करेंगे यहां से मल्टीप्लाइड बाय ये 1 तो 1 माइनस 7C1 7 के बराबर ये 7x 7C2 किसके बराबर है 21 अभी बोलो जल्दी जल्दी 7C3 is 35x cube 7C4 is 35x power 4। फिर 7C4 भी आ गया 7C5 21x power 5। फिर 7C6 is 7 and 7C6 7 x power 6 minus 7C7 is 1 x power 6। इतना ठीक है। अब इसको बोलो सिंप्लीफाई करके जल्दी जल्दी 1 plus 12x इट्स 1 plus 12x plus Plus 30x plus 60 60x square. plus 8 2s are 16 plus 60x 60x cube cube. ये बोलो 10 into 60. 240 किसको हमने किया 15 into 60. ये 240 x is power 4 x power 4 632 192. 192 x power 5 64 x power 6 into this one it's 1 जरा बोलो क्या क्या 1 minus 7x plus 21x क्या है फिर तीसरा 35 फिर 21 7 होती है ठीक है yes sir इतना है। अभी देखो क्या करना है हमें क्या चाहिए x पावर 5 का कोएफिशिएंट ठीक है बोलो देयरफॉर कोएफिशिएंट हम अब पूरा इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फिर तो ये बहुत सारे टर्म्स आएंगे ये देखो कितने टर्म्स आएंगे मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर तो हमें 56 टर्म्स पहले बनानी है अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 से पहले सबको मल्टीपल करोगे yes sir
2 से 12 से सबको मल्टीपल करोगे, ये कुल मिला के 56 टर्म्स आएंगी, उनमें से फिर लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इज इक्वल, पूछते ही होगा मैं क्या कहता 1 को इसमें से किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कोएफिशिएंट x पावर 5 बचे। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 और इसको मल्टीपल करोगे, किसको, मैंने किसको टिक किया, 21 अगर आप 1 और 21 x पावर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर को, अच्छा ये तो x स्क्वायर टर्म ही रहेगी ना, युमाशय जरूरत हमें कौन सा चाहिए, x पावर 5 अब बोलो 1 को किस टर्म से मल्टीपल करेंगे, 21 x पावर 5 किससे, ये वाले से, -21 x पावर 5 से। तो मैं लिखता हूं ऐसे 1 into -21 x पावर 5, ठीक है। yes sir लेकिन इसमें से x पावर 5 को हम नहीं लिखने जा रहे क्योंकि मुझे सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये मैं इरेज करूंगा कि मैंने मेंशन किया कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5, अब मैं x पावर 5 को नहीं लिखने जा रहा, समझ हुआ? और ये जो इसके साथ x पावर 5 था, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा, -21 x पावर 5, मुझे इसमें से ये चाहिए, ये मैं नहीं लिखने जा रहा। क्लियर? yes sir एक प्लस करेंगे 1 को और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पावर जो है x पावर 5 बनेगा, वो किसी के साथ भी नहीं। अभी 12 का बोलो, 12x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35x पावर 4, जब 12x और 35x पावर 4 जब इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तब जाके इनका पावर जो है 5 के बराबर आएगा, x पावर 1 इंटू x पावर 4, फिर बनेगा x पावर 5, और फिर उनका मुझे कोएफिशिएंट चाहिए, कौन कौन है, 12 एंड 35, 12 एंड बढ़िया को स्पष्ट करो हाँ? और दोनों पॉजिटिव है। उसके बाद प्लस, अब ये बोलो जल्दी जल्दी, 60x स्क्वायर 35x क्यूब, तो मतलब यहां से 60 और यहां से -35, फिर आगे बोलो 240, अच्छा 160 बचा भी, 160x क्यूब और यहां से स्क्वायर, मतलब 160 इंटू 21, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट x क्यूब, सॉरी इसके साथ में x क्यूब है, इसके पास साथ में x स्क्वायर है, तो कुल मिला के बनेगा x पावर 5। फिर 240x4, 240x पावर 4 into minus मल्टीप्लाइड बाई -7, फिर 192x पावर 5 into 1, सो इट इज 195। अब सबको आप मल्टीपल करो, फिर मुझे आंसर बोलो, बोलो क्या क्या है, -21 -21 12 into 35 2 4 420 420 60 into 35 minus 2 100 2100 20 100 100 160 into 21 3360 3360 240 into 7 -7, ठीक, minus 1680 हाँ minus 1680 1680 plus 195। अभी आप इन तीन को पहले ऐड करो, 1 2 3 जो पॉजिटिव है, positive 420 3360 एंड 195 3975 3975, 75 फिर इन तीन को ऐड करो, जो सर ठीक है, सच ठीक, -21 -100 एंड दिस, इनको ऐड करना है, minus 3801 -3801। अभी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, 3975 3975 minus 3801 174 174 is the coefficient of x power 5 in the expansion of the product of these two. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। जरा पढ़ो क्वेश्चन। A and B are distinct integers. Prove that a minus b is a factor of a power m minus b. Prove that a minus b is a factor of a power m minus b power n. आपने प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है। एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू a plus b तो मतलब जब हमने इसको फैक्टराइज किया
तो दो फैक्टर्स आ गए, उन दो फैक्टर में से एक फैक्टर ये है। ठीक है, अभी आपको शायद नहीं पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो इस फैक्टराइजेशन के अंदर दो फैक्टर्स आ गए, उनमें से एक फैक्टर ये है। ठीक है, समझ आए? तो यही हमें प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं, एग्जाम्पल से नहीं प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल करेंगे। प्रूफ ऐसे करेंगे, शुरू करेंगे a पावर n से, a पावर n। तो यू a पावर n कैन बी रिटन एज a माइनस b प्लस b पावर n। लिख सकते हैं। अब बाइनोमियल यूज करेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ दो टर्म्स होनी चाहिए, तो इसको हम एक टर्म कंसिडर करेंगे, इसको दूसरी टर्म कंसिडर करेंगे। हो गए एक और दो टर्म्स। क्लियर? अभी बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, इट्स MC0 A और B। एक हो गए, फिर क्या लिखते हैं? MC1 A एंड B, लेकिन याद रखना ये A नहीं, A माइनस B। फिर MC2 A एंड B, सो ऑन अप टू लास्ट पे है MCN, लेकिन उससे पहले MCN माइनस 1 A और B, और लास्ट पे MCN A और B। नहीं समझे? ठीक है, लास्ट वाला मुझे चाहिए, लास्ट से पहले जो है वो मुझे चाहिए, इसलिए मैंने लिखा। अच्छा, अब A का पावर 0, सॉरी N से शुरू करते हैं, N, फिर N माइनस 1, N माइनस 2, N, फिर N माइनस, यहां पे तो 0 है, उससे पहले क्या होगा? 1 होगा। लास्ट पे क्या आ जाता है? पावर 0, उससे पहले क्या होगा? 1, उससे पहले क्या होगा? 2। अच्छा, अभी B के पावर्स 0, 1, 2, लास्ट पे N आता है, उससे पहले N माइनस 1। इज दैट क्लियर? हमारे पास है क्या? A पावर N इज इक्वल, ये 1 है, ये 1 है, बचा क्या? A माइनस B पावर n। ठीक, सेकंड ये n है, ये a माइनस बी पावर n माइनस 1 है, B पावर और ये b। इसको इवाल्युएट मत करो, ऐसे ही रखो, जरूरत नहीं है। MCN माइनस 1, ये क्या है? n से 1, ये A माइनस B पावर 0 1, 1, ये B पावर n। b पावर n। इस b पावर n को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें चाहिए a पावर n माइनस b पावर n। ये a पावर n वो इधर शिफ्ट करो, माइनस b पावर n इज इक्वल। अच्छा, अब जो बचा ये वाला पोर्शन, क्योंकि b पावर n को मैंने शिफ्ट कर दिया। अब इस पोर्शन के अंदर आप मुझे बताओ, क्या हर जगह पे a माइनस b है? यहां पे a माइनस b है, लेकिन एक ही है, यहां पे भी है, यहां पे तो बहुत सारे हैं, यहां भी है, यहां भी है। तो कॉमन क्या निकालेंगे? कॉमन निकालते हैं लीस्ट वाला, जो कम, सबसे कम है, सबसे कम a माइनस बी पावर 1 है, तो इसको निकालते हैं कॉमन। जब कॉमन निकालोगे, इसमें से एक निकाला, एक तो कम हो जाएगा। अब यहां पे बचा a माइनस बी। अब ये अगर 10 थे, एक बार आ गया तो 9 बचे, मतलब अगर n है तो एक कम हो जाएगा, तो n माइनस 1 बचेगी। फिर दूसरे में से ये कॉमन निकाला, इसमें से एक n माइनस 2, ये n है, फिर इसमें से एक कम होने के बाद n माइनस 2 बचेगा, और ये अपना b वहीं पे रखा। फिर MC2, इसमें से एक कम होगा, और इसके साथ b स्क्वायर बचेगा। फिर MCN माइनस 1, इसमें से ये बाहर, सो ऑन अप टू MCN माइनस 1, ये a माइनस बी बाहर, तो b पावर n माइनस 1 बचेगा। अच्छा, यहां पे हाँ MCN माइनस 3, और लास्ट में ये तो बाहर आ गया। ठीक है, अभी मैंने आपको एक दिन बताया था
कि ये सारे तो इंटीजर से बन जाएंगे अगर ए और बी के कुछ इंटीजर वैल्यू होंगे, ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होते। नहीं बने। तो ये कितने फैक्टर आ गए इसके, 1 एंड 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो इट्स a माइनस b, ये सारा आप डिनोट करो एज k, क्योंकि k इज समवेयर, k इज सम इंटीजर। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या इसका एक फैक्टर a माइनस बी है ना? Yes, sir. क्योंकि a माइनस बी को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है, देयरफॉर a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n, है ना? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द Approximation of 0.99 power 5. find the approximation of 0.99 power 5. power 5 Using the first three terms. up to, yeah, देखो सीधा पर using Three terms of its extension. 3 terms of its extension। तो मतलब 0.99 पावर 5 इसको हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल, और उसमें पहले 3 टर्म्स को हम इस्तेमाल करेंगे, फिर देखेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे यहां से 0.99 पावर 5, बाइनोमियल बनाना है तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 0.01, मुझे लगता है यही आएगा। अगर 1 में से 0.01 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले चेक करते हैं, 1.00 माइनस 0.01, it's 10 minus 1 is 9, it's 9, it is 0. Okay? Yes, sir. ठीक है, तो 1 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो 0.99 बचेगा, 0.0। अभी हमारे पास है a और b, लेकिन माइनस है, तो शुरू करेंगे यहां से 5C0 a and b। So yes, colors. अगर 0.0 अगर यूएस लेको गणित नहीं भाई माइनस 0.01 ठीक है, हमारी गलती No, sir. 0.01, फिर a और b 5C 1 नहीं, अब हाँ ये माइनस का 0.01, फिर Plus 5C2 1 and 0.01। मैंने लिखा यहाँ पे ओनली 3 टर्म्स एज पर क्वेश्चन मैंने इस्तेमाल किया। हम आगे भी जा सकते थे, अभी 5 से 5 तक जाना है, 6 टर्म्स आएंगे, मैंने सिर्फ इस्तेमाल किए कितने, 3 terms. सिर्फ 3 टर्म्स। इसके ऊपर पावर 5, फिर 4, फिर 3, इसके ऊपर पावर 0 1 and 2। ठीक है, ये 1, ये 1, ये भी 1, कुल मिला के 1, माइनस 5 ये 5, ये 1 और ये 0.01। 5C2 किसके बराबर है, 5 factorial, 2 factorial, 3 factorial, it's 5 4s are 20 by 2 is 10. So it's 5C2 is 10 into 1 into 0.01 square. अभी आप करो मल्टीप्लाई फिलहाल इसको, इट इज 0.05, फिर 10 और इसको मल्टीपल करो, पहले इसको 0.01 into 0.01, 0.001 0.001, हाँ? 0001। अब करो 10 से मल्टीपल, 0.001 0.001। ठीक है, अभी आप ऐड करो फिलहाल इन दो को, 1 प्लस 0.001 so it was 1.001 1.001। फिलहाल इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करो ये 0.05 0.951 0.951। ठीक है, ये इसका अप्रोक्सीमेट यूजिंग 3 टर्म्स ऑन। जरा इसका आंसर चेक करो। फाइंड n if the ratio of fifth term from beginning to the fifth term
from the end The expansion of in the expansion of 4 under root 2, huh? 4 root 2 4 root 2 plus plus 1 by 4 root 3 4 root 3 power n. power n. यही है, जरा फिर से चेक करें नेक्स्ट शीट. Raising Find n if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of this is 4 root 2 plus 1 by 4 root 3 power n is under root 6 to 1. is to 1. तो हमने निकालना है n का value. देखो क्या करेंगे हम now इसको करेंगे फिलहाल बाइनोमियल अप्लाई, इसको करेंगे एक्सप्लेन, ताकि हमें पता चले फिफ्थ टर्म फर्स्ट से और फिफ्थ टर्म वहां से आने के बाद कौन कौन सी टर्म है उन्हीं को हम पिक करेंगे. ठीक. 4 इट इज MC0 4 A and B. ध्यान से लिखना है. NC2 Then NC0 MC1 4 A and B. NC2 MC2 A and B. NC. शेड है यहाँ पे, Yes sir. अभी आ गया Yes. इतना ही ठीक है. फिर प्लस MC2 पे आ गए, फिर NC3 MC3 4 root 2 A and B. NC4 MC4 A and B. फिलहाल मैंने कितनी टर्म्स लिखी? 1 2 3 4 5. 5 काफी है. फिर लिखेंगे सो ऑन. नहीं, सो ऑन में हम सबसे पहले लास्ट टर्म वहां से शुरू करेंगे. लास्ट टर्म से आएंगे 5 टर्म्स तक काउंट करने के बाद. हम डायरेक्टली लास्ट नहीं लिखेंगे, हम लास्ट यहां पे लिखेंगे, फिर शुरू करेंगे 5 टर्म्स काउंट करना. Yes sir. अच्छा, शेड यहां भी है. No, sir. No sir. फिर मैं लिखूं यहां पे लास्ट टर्म. Yes, sir. अच्छा, यहां पे लिखिए NCN. MC and is the last term A and B. NCN. N minus उससे कम MC n minus 1 A and B. उससे कम NCL MC n minus 2 A and B. कितने आ गए? 1 2 3. अभी सिर्फ 2 लिखने हैं, उनको मैं यहां पे लिखता हूं, एक यहां पे, एक यहां पे. MC n minus 3 A and B. और लास्ट में यहां पे MC n minus 4 A and B. देखो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5, फिर लास्ट से 1 2 3 4 5. इस टर्म, अच्छा अभी थोड़ा बाकी है ना, क्या बाकी है जरा? पावर. ए का पावर n से शुरू होता है, n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4. लास्ट पे क्या होता है? 0. उससे पहले 1, उससे पहले 2, उससे पहले 3, उससे पहले 4. बी का पावर 0 0 1 2 3 4. लास्ट पे कहां पे पहुंच जाते हैं? n. उससे पहले n minus 1, उससे पहले n minus 2 n minus 3 n minus 4. अब इसमें से पिक करेंगे हम फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड. उनको पिक करेंगे, उनका रेशियो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है ये टर्म और ये टर्म का रेशियो है √6:1. इट इज दिस MC 4 root 2 n minus 4 1 by 4 root 3 power 4 is to इसका रेशियो MC n minus 4 root 2 power 4 1 by 4 root 3 power n minus 4 is equal to √6:1. इतना ठीक है? समझ आया? तो इन दो का रेशियो निकालना है, वो तो रेशियो निकाल के हमें n का वैल्यू चाहिए. अभी इनको करेंगे हम एक्सपैंड, इवॉल्वेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. MC4
एंड NC n-4। आपको पता है ये तो सेम है, तो इसका वैल्यू आएगा भाई, इसका वैल्यू आएगा। इसको एक काम करते हैं हम, ऐसे लेते हैं NC4 4√2 पावर n-4। फिलहाल मैं इसको ऐसे रखता हूं, डिवाइडेड बाई इसी के साथ 4√3 पावर 4। ठीक है, इस का हो जाएगा डिवाइड का बनेगा इनटू, डिवाइड का बनेगा इज टू मीन्स डिवीजन, डिवीजन का इनटू हो जाएगा, इन का हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल में ये डिनोमिनेटर के अंदर ये चला जाएगा न्यूमरेटर में। क्लियर? और ये डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएंगे। कौन कौन? MC n-4 4√2 पावर 4 is equal to √6 divided by 1। अभी मैं लिखूंगा MC4 और MC n-4 बराबर होते हैं, पता है? क्योंकि अगर आप इन दो का सम करोगे ना वो n के बराबर आएगा। अगर ये दो बराबर है तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज दिस। अच्छा, when bases are same, powers added, लेकिन ये डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? 4√2 पावर n-4 ऑलरेडी है -4 इनटू 4√3 पावर n-4 इसके साथ -4 इज इक्वल टू √6। इतना ठीक है? समझ आया? अभी कहां पे जाए? इसको मैं इरेज करूं यहां से। क्वेश्चन जहां पे लिखा है वहां पे इरेज करेंगे। हमें चाहिए वैल्यू ऑफ n, इट्स 4, यहां पे इट गिव्स अस 4√2 पावर n-8 इंटू 4√3 पावर n-8 इज इक्वल टू √6। ये ठीक है? अच्छा, दोनों के पावर सेम है तो 4√2 इंटू 4√3 पावर n-8 इज इक्वल टू √6। 4 और 4 16, 16 के साथ √6 पावर n-8 इज इक्वल टू √6। ये ठीक है? अभी हमने क्या करना है? ये किससे मदद? आंसर 9 chance in base 10। किसका √6 किसके कंपेयर? यूनियन से कंपेयर। और कोई ठीक बस second one. It shows the fourth root. They want 4 root. Fourth root is 2. 4 root उसका क्या फर्क? अभी सुनो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अभी एक करेक्शन है। ये 4√2 नहीं था, बेसिकली ये 4th √2 है। इसका रूट नहीं, ये 4th रूट है। और ये भी इंटू 4th √3 पावर n-8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये भी स्क्वायर रूट की 4th रूट है। जरा ये देखो, स्क्वायर रूट। हाँ,
So it gives us fourth root of 2 into fourth root of 3 is fourth root of 6. It is fourth root of 6 power n minus 8 is equal to square root of 6. फोर्थ रूट का मतलब क्या है? 6 पावर 1/4 होल पावर n minus 8 is equal to 6 पावर 1, सॉरी 6 पावर 1/2. ये ठीक है? अच्छा, 6 के ऊपर पावर आएगा 1/4 इंटू n minus 8 is equal to 6 पावर 1/2. अभी इन दो के बेसिस जब सेम होते पावर्स भी इक्वल होते हैं. इक्वालिटी में यहां पे ध्यान रखना, यहां पे 4√2 नहीं है, पूरे क्वेश्चन में 4√2 नहीं है, फोर्थ रूट ऑफ 2 है. तो ये भी फोर्थ रूट ऑफ 2 और ये सॉरी 3 और ये √6 ही है. तो ये जब बेस इक्वल होते तो पावर्स भी इक्वल होते. तो 1/4 इंटू n minus 8 is equal to 1/2. It's 2 1s are 2 2s are. So it's 1/2 into n minus 8 is equal to 1. So it is n minus 8 is equal to 2 1s are 2. So n is equal to minus 8 plus 2 is 10. So the value of n is 10. Okay? Mark is